हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर्स एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को कि हम कैपेसिटेंस से क्या समझते हैं। सपोज वी टेक अ कंडक्टर एंड वी गिव सम चार्ज टू दैट कंडक्टर। हमने किसी कंडक्टर को कुछ चार्ज दिया और चार्ज देने पे कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेज हो गया। वी गिव सम चार्ज टू अ कंडक्टर और जिसकी वजह से अल्टीमेटली कंडक्टर का पोटेंशियल रेज हो गया। अब कंडक्टर का पोटेंशियल कितना रेज करेगा या कितना रेज हुआ है, ये डिपेंड करेगा उस कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पे। So basically, electrical capacitance is the capacity of a conductor to store the charge or to store the electrical energy. Okay, तो कोई कंडक्टर में चार्ज देने पे कैपेसिटर कितना रेज करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर। सो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि हम जो चार्ज दे रहे हैं इट विल रेज द पोटेंशियल। Let us suppose we give some charge q to the conductor and it raises the potential of a conductor by amount v. Okay, when we remove that proportionality it comes out to be cv. So this is the factor on which it depends कि कितना चार्ज देने पे कितना potential raise करेगा. This c is known as the capacity of a conductor. This c is known as the capacity or called as the capacitance or called as the capacitance. So now I'm going to define the capacitance. Capacitance का जो यूनिट है that is farad, उसे हम farad में लेते हैं एंड जनरली जो जनरल इस्तेमाल किया जाता है, जो जनरल हम यूज़ करते हैं वो हमारा रहता है माइक्रोफेरेड्स तक का. इट इज़ क्वाइट सफिशियंट माइक्रोफेरेड. ओके, एंड यूनिट फॉर दैट इज फेरेड एंड वन माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू 10 raised to power minus 6 farads. Okay students, now I'm going to define that what is the meaning of 1 farad. एक farad का मतलब क्या है? What is the meaning of 1 farad? या हम किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को 1 farad कब कहेंगे? For example, I give the charge of 1 coulomb. I give the charge of 1 coulomb to my conductor. I give this 1 coulomb amount of charge to my conductor and on giving this charge of 1 coulomb to the conductor, कंडक्टर का पोटेंशियल रेज हो गया है 1 वोल्ट से. I give the charge 1 coulomb to my conductor. It raises the potential of that conductor by 1 volt. It raises the potential of that conductor by 1 volt. तो उस केस में मैं कहूँगा कि हमारे इस कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो 1 फैरेड की है. This is the meaning of capacity or capacitance. So I give the charge 1 coulomb to the conductor. ये देने पे कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से रेज हो गया, तो हम कहेंगे कि हमारे कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो है 1 फैरेड की. This is the meaning of, this is the definition or the meaning of capacitance or electrical capacitance, or in brief, like it is the capacity of a conductor to store the charge. So now I am coming to the capacitor and then I will discuss about the various combinations of capacitor or called as the grouping of capacitors. So capacitor एक combination है दो conductors का. Capacitor is a combination of conductors at some small distance with respect to each other, and we join that capacitor to a source or a battery and give positive charge to this conductor and give equal amount of negative charge to this conductor. And the potential of this one, इसे इन conductors को generally हम plates भी बोल देते हैं. This is plate 1 and this is plate 2 of capacitor. एक पे हमने equal amount of positive charge दिया है, एक पे हमने equal amount of negative charge दिया है, और इसका जो potential है that is V positive, इसका जो potential है that is V negative. This type of arrangement of conductors, when they are separated by a very small distance or there is a medium in between them, like sometimes there is some medium and sometimes there is air or a vacuum. So V positive is the potential of this plate and V negative is the potential of this plate. We join that arrangement of two plates or two conductors through with a battery, and this type of arrangement is known as a capacitor. So we have different arrangement in which we can group
टू और मोर कैपेसिटर्स विद ईच अदर, एक ऐसा अरेंजमेंट हम कर सकते हैं जिसमें दो या दो से अधिक कैपेसिटर्स एक साथ जोड़े गए हैं। दो तरह के कॉम्बिनेशन हमारे पास जनरली रहते हैं। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसा रेजिस्टेंसेज में पढ़ते हैं वैसा यहाँ पर भी है। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ capacitor. So capacitor is basically a conductor, combination of two conductors separated by some distance, जिसे हम एक कंडक्टर को हम इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव, दूसरे को हम इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज देते हैं, उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो फर्स्ट ग्रुपिंग जो करने जा रहे हैं वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, उसका डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज लाइक अ बैटरी एंड दीज आर टू प्लेट्स एंड हियर वी हैव सम अदर प्लेट्स। ओके, सो दिस इज अवर प्लेट नंबर 1, दिस इज अवर प्लेट नंबर 2, दिस इज अवर प्लेट नंबर 3, दिस इज 4 and this is 5 and this is 6. Okay students, now we have a battery. We supply positive charge to this conductor and equal amount of negative charge to this conductor. जो बीच में आपको प्लेट्स दिख रही हैं, like 2 and 3 are connected with each other, 4 and 5 are also being connected with each other, but these are insulated. These are insulated from the other one, like this. These are insulated in between this region. This is insulated in between this region. So here we take basically 3 capacitors. We take 3 capacitors because there are 6 plates, so there are 3 capacitors. One capacitor has the capacitance C1, second capacitor has the capacitance C2, third capacitor has the capacitance C3. ये हमने suppose किया. Let us consider that. Let us consider that कि C1 जो है फर्स्ट कैपेसिटर का है कैपेसिटेंस, C2 दूसरे का है और C3 तीसरे का कैपेसिटेंस है, एंड दे आर कनेक्टेड अकॉर्डिंगली, जो हमने यहाँ पर फिगर बनाया है। हम यहाँ पर बताएंगे, डिफाइन करेंगे कि कब इसे, क्यों इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कह रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव सम पॉजिटिव चार्ज टू दिस प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज टू दिस प्लेट। अब यहाँ क्या होने जा रहा है, कॉम्बिनेशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो कैसे होने जा रहा है। हमने यहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दिया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस क्यू और यहाँ लिख रहा हूँ मैं इस प्लेट पे माइनस क्यू। ओके स्टूडेंट्स, so the positive charge at this surface of this plate number 1 pulls the equal amount of negative charge, and वो चार्ज को ये यहाँ पर लेके आ जाएगा, इस तरफ लेके आ जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये प्लेट नंबर 3 से सारा पुल करता हुआ यहाँ पर आ गया है, और साइमल्टेनियसली इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे डेवलप हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया, यहाँ इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दिया। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस प्लेट के ऊपर, इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड ने, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, इट पुल्स द नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस 2 and 3 अरेंजमेंट टू दिस साइड। ओके, और सारा नेगेटिव इस तरफ आ गया और इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इस तरफ आ गया। ओके, सो यहाँ पर डेवलप हो जाएगा माइनस क्यू दूसरी वाली प्लेट के ऊपर, साइमल्टेनियसली इस पे हो जाएगा प्लस क्यू, और अब यहाँ पर प्लस क्यू है, सो इट पुल्स द नेगेटिव चार्ज फ्रॉम 5 एंड यहाँ प्लेस चार्ज को कर देगा, लाइक यहाँ पर 4 के फेस पे, सो इट इज माइनस क्यू अगेन, एंड सिमिलरली प्लस हियर अगेन, सो इट इज प्लस क्यू। सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सो हियर वी हैव 3 कैपेसिटर्स, all are of different capacity C1, C2, C3, लेकिन जो आप यहाँ बात नोटिस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि यहाँ पर सभी के पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, सभी के पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है। और जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कैपिटल V, और बट these are like in series, so potential is being distributed, potential is being different across the each capacitors because charge तो सेम है लेकिन इनकी कैपेसिटी अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर सबके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट है। सो हमने एक इक्वेशन पहले ड्राइव किया था, लाइक Q इज इक्वल टू CV। ओके, सो वी हैव 3 कैपेसिटर्स, सो लाइक चार्ज सभी में सेम है, तो सभी के अक्रॉस का जो वोल्टेज आएगा, जैसे पहले के अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन आएगी
Q upon C1. This is our equation number 1. Second is V2 is equal to Q upon C2, and third V3 is equal to Q upon C3. These are the values of potential difference across each capacitor, Q upon C1, Q upon C2, Q upon C3. Let us suppose this is like series combination का definition ही यही है कि to go from one capacitor to another capacitor there is a one path, or second is that the charge on the each capacitor is same, so this is a series combination. Okay, and voltage is different across the capacitors. It depends on the कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर. वोल्टेज क्या होगा हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस, ये इसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. इट कैन बी सेम, देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल लाइक कि ये डिफरेंट ही होगा. इट कैन बी सेम इफ दिस कैपेसिटी इज सेम, तो ये भी सेम हो जाएगा. ये कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट द मेन रूल इज दैट ऑन ईच कैपेसिटर चार्ज शुड बी सेम. तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा रहेगा. सो लेट अस सपोज दैट इस सीरीज कॉम्बिनेशन का जो टोटल कैपेसिटेंस है हम उसे CS लिख लेते हैं. तो ये मान के, और जो टोटल वोल्टेज जो है जो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्रॉस द कैपेसिटर्स, दैट इज कैपिटल V. सो इसके लिए हम अगर इक्वेशन लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगी, Q इज इक्वल टू CS कैपिटल V, और यहाँ से हम वोल्टेज अगर निकालेंगे दैट वोल्टेज इज Q अपॉन CS. सो वी हैव दीज इक्वेशंस, और अब इन इक्वेशंस को यूटिलाइज करके हम अपने कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे. सो ये कुछ इस तरह से है, इसका जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा. अगर आप देखें यहाँ पर दिस इज द वैल्यू V, और यही पोटेंशियल जो है आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हुआ है क्रॉस द कैपेसिटर. सो आई कैन राइट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. So I utilize these different equations. One equation number 1, this is equation number 2, this is equation number 3, and this is equation number 4. तो और चारों को यूटिलाइज करने के बाद यहाँ पर मैं अपने कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव कर लूंगा कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां पर अभी हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं. तो वोल्टेज की जगह हम पुट करेंगे Q बाय CS इज इक्वल टू V1 की जगह हम पुट करेंगे Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3. सो ऑन सॉल्विंग दिस फर्दर हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन में थोड़ा सा बदलाव होगा. Q आप देख रहे हैं हर तरफ है, तो आप Q को कॉमन लेके इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. इट इज लाइक 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3. सो Q से Q कट जाएगा एंड वी हैव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस. सो हमारे पास जो अभी वैल्यू आ रही है कैपेसिटेंस की, दैट इज जस्ट 1 बाय C1, 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3. सो यूजिंग दैट एक्सप्रेशन आप जो है एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको उसको उल्टा भी करना होगा, एंड एट लास्ट यू विल गेट एन एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस. दिस इज 1 अपॉन CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. So students, after discussing for series combination of capacitor, we will now discuss about the parallel combination of capacitors. This is the circuit diagram for a parallel combination of capacitors. Here we have 3 capacitors, C1, C2 and C3, and it is being connected to a battery that has capital V as a potential. सो एक बात अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि हर एक कैपेसिटर का जो पॉजिटिव प्लेट है वो पॉइंट P से कनेक्टेड है, और नेगेटिव प्लेट जो है पॉइंट N से कनेक्टेड है हर एक कैपेसिटर का. सो इट मीन्स दैट दे ऑल आर एट द सेम पोटेंशियल. सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट वोल्टेज इज सेम, पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स. सभी कैपेसिटर्स के लिए पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा. चार्जेस आर लाइक Q1, Q2 एंड Q3 बिकॉज जो 3 कैपेसिटर हमने यहाँ लिए हैं उनका जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है. तो कैपेसिटी डिफरेंट होने की वजह से, बेशक इनका पोटेंशियल सेम है, लेकिन कैपेसिटी डिफरेंट होने की वजह से इनके पास जो चार्ज का वैल्यू है वो डिफरेंट है, Q1, Q2 एंड Q3. सो वी यूज द एक्सप्रेशन दैट Q इज इक्वल टू CV. ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है. तो हम यहाँ पर वी राइट द एक्सप्रेशन फॉर लाइक चार्जेस के लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे. तो ये आ जाएगा फर्स्ट के लिए C1V बिकॉज पोटेंशियल इज सेम बट कैपेसिटी आर डिफरेंट. सो सेकंड के लिए आ जाएगा C2V, एंड थर्ड के लिए आ जाएगा C3.
Okay, and basically the charge supplied by the battery is capital Q. So this capital Q is basically equal to Q1 plus Q2 plus Q3. यही जो चार्ज है वो जाके डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कैपेसिटर्स को Q1, Q2, Q3 की फॉर्म में. Okay, so total charge Q is equal to Q1, Q2 and Q3. So let us suppose इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, लेट अस सपोज वी डिनोट दैट बाय Cp. हम उसे Cp से डिनोट करते हैं और उसके लिए भी इक्वेशन लिख लेते हैं. सो वो इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, Q is equal to CpV. Okay students, so we have like first equation, second equation and third equation as well as fourth equation as well as fifth equation. So after observing these equations, हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 4 का इस्तेमाल करेंगे और हमारा जो रिजल्ट है वो हम उस तक पहुँचने वाले हैं अभी. सो इट इज़ लाइक Q की जगह हम पुट करेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड दैट इज इक्वल टू CpV. ओके, Q1 की जगह आ जाएगा हमारे पास C1V प्लस C2V फॉर Q2 और Q3 के लिए C3V और हम इसे लिखेंगे CpV के बराबर. ओके, हम यहाँ से V कॉमन लेंगे, सो वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ रहा है C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू CpV एंड V ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर एंड एट लास्ट वी हैव द एक्सप्रेशन फॉर Cp. तो Cp का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से आ रहा है C1 प्लस C2 प्लस C3. So whenever like you are in a parallel combination of capacitors, you just add the individual capacitances and then you will get the answer for your equivalent capacitance. तो सभी capacitance की capacities को add करिए simple, you will get the expression for Cp. And सीरीज के लिए जो हमने ड्राइव किया था वो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन था. सीरीज कैपेसिटेंस के लिए 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. तो इस तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए और सीरीज के लिए, दिस इज फॉर द पैरेलल एंड दिस इज फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये डेरिवेशन दोनों ही कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का समझ आया होगा. विद दैट, थैंक यू वेरी मच.